Now the topic is your synchronization in DOS, distributed operating system. The introduction to synchronization, I explained you yesterday this concept. What is synchronization? It is a coordination of actions between processes. For some application, there is a need that all the processes must coordinate or must synchronize with each other. If the processes execution are dependent on each other, आपकी किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन किसी और प्रोसेस पे डिपेंड कर रही है और वो प्रोसेस आपका लोकल प्रोसेस नहीं होकर रिमोट प्रोसेस है, देन फॉर दैट आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? सिंक्रोनाइजेशन की. क्योंकि अगर उनकी सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं होगी, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो आपका जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगी ओवर दैट नेटवर्क वो एफिशिएंटली नहीं हो पाएगी. ओके, नाउ सी हियर इन द केस ऑफ योर सिंक्रोनाइजेशन, first of all you know that there is a coordination of action between processes. Clear? Now next here is, first of all see here the distributed architecture. In the case of your distributed architecture, you know that all the nodes have their own subset of resources. Suppose there are 3 nodes over this network. I am taking here 3 nodes, node 1, node 2, and here I am taking the node 3. And I am connecting all these nodes with a communication link. And I am giving them the names, that is the node 1, suppose I am writing here N1, this is the node 2, that is N2, and this is the node 3. Clear? Now on this distributed architecture, you know each of these nodes have their own subset of resources, and within that subset what comes here? First is a memory, you know, with a processor, disk, and another term which is you have to represent here to explain the concept of synchronization, that is a clock. Okay, and same here also in the N1 node there is the memory, its processor is there also, disk and clock. Disk and clock. And same here over N3 there is the memory, processor, disk and clock. Now you can see here all the node have their own clocks. Now in this case what happens, तो clock timing होगा अब इन तीनों नोड पे जो clock है उनका जो clock timing होगा, all these timing are different. Okay, so you can see here in your distributed architecture there is no common clock. कोई भी एक कॉमन क्लॉक नहीं है. यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी मल्टीपल नोड्स हैं तो मल्टीपल नोड्स में आपके पास क्या है? डिफरेंट क्लॉक्स, एंड ऑल दीज डिफरेंट क्लॉक्स हैव देयर डिफरेंट टाइमिंग. अब अगर कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है टू फ्रॉम सर्विसेज फ्रॉम एनी अदर प्रोसेस जो कि आपकी रिमोट साइट है, तो अब क्या है कि वो जो सर्विस यानी कि जो डिपेंडेंसी हो गई एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस पे जो कि उसकी साइट पे ना होकर एक रिमोट साइट पे है, तो अगर उनका टाइमिंग ही सेम नहीं हो पाएगा तो उनका जो एग्जीक्यूशन है, जो एक विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टैम्प हम डिफाइन करते हैं, वो जो एग्जीक्यूशन है वो ओवर द नेटवर्क नहीं हो पाएगी अच्छे से. So for that, to do that execution of all processes efficiently, what we need to have the concept of clock synchronization. Clear है? In the distributed architecture, what you have, all the nodes, you know, these all nodes have their own set of resources, and among these resources there are also clock over all these nodes. इन सभी नोड के पास क्या होती है? अपनी क्लॉक भी होती है. Now in the case of your distributed system there is no common clock. हमारे पास कोई common clock नहीं होती है.
ऑल दीज क्लॉक्स हैव देयर डिफरेंट टाइमिंग, और इन सभी क्लॉक के क्या है, अपने अपने डिफरेंट टाइमिंग है। अब अगर डिफरेंट टाइमिंग होती है तो उससे क्या होता है कि अगर आपके प्रोसेसेस डिपेंड कर रहे हैं किसी और प्रोसेस पे, तो उनकी जो एग्जीक्यूशन है ओवर दैट नेटवर्क वो एफिशिएंटली नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ देयर टाइमिंग डिफरेंस। सो फॉर दिस रीज़न देयर इज़ ए नीड ऑफ क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज the clocks over all the nodes of a network have different timing. There is no common clock, and due to that different timing there will also difference in the execution timing of processes. But in the case if process depends on another process, then the execution of both the processes will not take place efficiently. So for efficient communication, efficient execution of processes, we need to have what the concept of clock synchronization. Clear है? So next here is what you have to explain here, the concept of clock synchronization. Clock synchronization. Now what is it? Clock synchronization is a mechanism. It is a mechanism which is used to synchronize, the time of all computers in a distributed system. Clear? What is clock synchronization? A mechanism which is used to synchronize the time of all computers in a distributed system. Now see here, for this clock synchronization, यानी कि clock synchronization एक सिंपल वे में मैं कहना चाहूँ तो वो क्या है कि जितने भी आपके सिस्टम है एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में, उन सभी के टाइमिंग को सेम करना, सिंक्रोनाइज करना, वो होता है आपका कंसेप्ट क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का। नाउ फॉर दिस कंसेप्ट, फॉर द क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन के लिए व्हाट वी हैव टू यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स एंड दिस प्रोसीजर। ये प्रोसीजर जो है ये इतना ईजी नहीं होता है किसी भी आपके इसमें आर्किटेक्चर में, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में अगर हमें सिंक्रोनाइजेशन करना है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, देन इट विल नॉट बी एन ईजी प्रोसेस, इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस. ओके, so see here, to implement this concept, the concept of clock synchronization, various distributed algorithms are used, and these algorithms have some properties. क्लियर है? तो हमारा को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या इसमें एक्सप्लेन करना है कि अगर प्रोसेसेस डिपेंडेंट हैं आपस में, उनकी एग्जीक्यूशन एक दूसरे पर डिपेंड करती है, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी टाइमिंग जो है उन सभी के सिस्टम में वो सेम होनी चाहिए। अब वो टाइम सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। अब ये जो आपका क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हर एक सिस्टम का जो टाइम है उसको एक जैसा सेम कर सकते हैं। बट ये जो प्रोसेस होता है सेम टाइम करने का हर एक सिस्टम में, इतना इजी प्रोसेस नहीं है। एंड फॉर दिस टू इम्प्लीमेंट यू हैव टू यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स, एंड ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स हैव सम प्रॉपर्टीज़। तो अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या है वो आप देखो इन द एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट आता है, एक्सप्लेन सिंक्रोनाइजेशन इन डोस, देन फॉर दैट
यू हैव टू एक्सप्लेन दीज डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम प्रॉपर्टीज़, बिकॉज आप किसी भी अगर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने जाते हो तो फॉर दैट उसका जो इंट्रोडक्शन होता है दैट यू मस्ट एक्सप्लेन टू गेट गुड मार्क्स. Okay, so first of all, the properties of your distributed algorithm is what? The relevant information, in this case, relevant information is scattered among multiple nations. Second, all the processes make decision based on their local information. Third is a single point of failure. A single point of failure must be avoided. Next here is next property. अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन भी किया था that there is no common clock. And its last property is what? That here in the case of your distributed architecture, the time is ambiguous. The time is ambiguous. What does it mean? It means that here the time varies. Time along each machine varies. मतलब यहाँ पे जो टाइम है हर एक सिस्टम में वो डिफरेंट है. क्लियर? So these are the 5 properties of your distributed algorithm which we are going to use to implement the concept of clock synchronization. So first of all here the information is scattered among multiple nations. You know, जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम द इंटरनेट, ऐसा तो है नहीं वो कि आप एक ही सोर्स और एक ही सोर्स से आप उसको गैदर करते हैं. वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है आपका कहाँ पे है, अलग अलग पॉइंट पे वो सिचुएटेड है. एंड जब भी आप क्वेरी डालते हो आपको तो विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. पर जो इम्प्लीमेंटेशन की गई है सिस्टम की वो कैसे की गई है, जो ये इन्फॉर्मेशन है वो क्या है अलग अलग जगह पे होती है. आप जस्ट क्वेरी डालते हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज स्कैटर्ड अमंग मल्टीपल नेशंस. और ये आपको पता भी है कि ऐसा होता ही नहीं है कभी कि एक ही जगह पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है. वो इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, अगर आपने कोई क्वेरी किया तो अलग अलग जगह पे वो हो सकती है. नेक्स्ट इज द जो आपका प्रोसेस है जो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, सपोज क्लाइंट प्रोसेस ही है तो वो किस पे बेस्ड अपनी एग्जीक्यूशन को अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करता है, बेस्ड ऑन इट्स लोकल इन्फॉर्मेशन. अब अगर आप अपना कोई असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करते हो तो बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है या जो आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दैट ही आप उसको वर्क करना उस पर स्टार्ट करते हो. थर्ड इज़ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मस्ट बी अवॉइडेड. यहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है और क्योंकि ये क्या है मेनली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है तो देयर इज़ नो आपका कोई आपके यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम नहीं है. ऑल दीज सिस्टम जितने भी सिस्टम है यहाँ पे वो क्या है उन सबके पास अपने रिसोर्सेज अवेलेबल है. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो कॉमन क्लॉक. ये भी आपको बताइए. एंड हेयर द टाइम इज़ एम्बिगुअस, यानी कि जो हर एक मशीन है वहाँ पे टाइम क्या है डिफरेंट है. तो हमें करना क्या है, हमारा मेन एम क्या है इस केस में कि हमें वो टाइम सेम करना है. क्लियर है. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट कम अप टू द टाइप्स ऑफ दीज एल्गोरिथम्स, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम. नेक्स्ट हियर इज द टाइप्स ऑफ distributed algorithms. To implement the concept of your clock synchronization. Now what are these types? See,
first type is PCS, that is known as physical clock synchronization algorithms. Second type is logical clock synchronization algorithm, and third type is mutual exclusion algorithm. Clear? So in the concept of your synchronization, these three types you have to explain. Now first come up to the physical clock synchronization. In this case also, in the case of your physical clock synchronization, further it is divided into three algorithms. इसमें भी आपके further three concepts है जो तुमको explain करने हैं. वो concept क्या है? In the case of physical, see here. First is UTC. The first concept which you have to explain here, the UTC, and this UTC stands for your universal coordinated time. Clear? Now next second इसमें आप यूज़ करोगे, एक्सप्लेन करोगे एल्गोरिथम, दैट इज नोन एज द क्रिश्चियंस एल्गोरिथम. Algorithm. Now the third which you have to describe here, it is Berkeley algorithm. Okay, ये algorithms आपके नेम से भी आ सकते हैं या फिर सिंपली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इन टर्म्स वैसे भी आ सकते हैं. ओके, क्लियर? So first for the physical clock synchronization you have to explain UTC, Christian's algorithm and Berkeley algorithm. Now next for logical clock synchronization, what you have to explain here? There you need to explain only one algorithm, that is known as your Lamport. इस algorithm का name क्या है आपका? Lamport clock synchronization. And next here is the mutual exclusion. In this you have to explain here distributed mutual exclusion, second is the centralized mutual exclusion, and in the third case, the third is token based algorithm. Clear? So for mutual exclusion you have to explain distributed mutual exclusion, centralized mutual exclusion and token based algorithm. For logical you have to explain the Lamport algorithm, and for the physical clock synchronization you have to explain UTC, Christian's and Berkeley algorithm. Okay, now start with the first one, that is your physical clock synchronization. Take the screenshot of this. Now I will start this topic, physical clock synchronization, in the next page. That is physical clock synchronization.
Now first of all here you must know what is a physical clock. फिजिकल क्लॉक क्या होती है अभी मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपका ओवर ए कम्युनिकेशन नेटवर्क मल्टीपल नोड्स कैन बी कनेक्टेड. अब उन मल्टीपल नोड्स में क्या होती है, अपनी एक क्लॉक होती है, ठीक है. उनके टाइमिंग क्या है यहाँ पे डिफरेंट है. तो जो हर एक सिस्टम में जो क्लॉक है उसको हम एक फिजिकल क्लॉक कहते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ इट, इसकी क्या आप किस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच काउंट ऑसिलेशंस इन ए क्रिस्टल एट अ पर्टिकुलर frequency and each computer over the network have this PC यानी कि फिजिकल क्लॉक. एंड द काउंट्स, जो ये काउंट लेती है वो कहाँ स्टोर करती है, वो कंप्यूटर रजिस्टर्स में स्टोर करती है. कंप्यूटर रजिस्टर्स आपने स्टडी किए होंगे. रजिस्टर इज़ अ स्टोरेज डिवाइस जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है. तो यहाँ पे जो फिजिकल क्लॉक ऑसिलेशंस काउंट करती है वो काउंट नंबर वो कहाँ डाल देती है, कंप्यूटर रजिस्टर्स में. So this physical clock you can say mainly it is used to timestamp an event on that computer. यानी कि अगर हमारे पास किसी भी 10 इवेंट्स हैं, उन 10 इवेंट्स को हमें एग्जीक्यूट करना है, सो उन 10 इवेंट्स को जो हम टाइमिंग देंगे उनके साथ जो एक टाइम स्टैम्प अटैच करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम स्टैम्प ओनली आपकी जो वो इवेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती है. और वो टाइम स्टैम्प उनको कौन देता है, वो देगा आपकी कंप्यूटर की फिजिकल क्लॉक. तो मैंने अभी आपको यही बताया था कि अगर आप एक सिस्टम यूज़ कर रहे हो अपना, उस सिस्टम की अपनी एक क्लॉक है. अब आपको क्या करना, प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना. बट वो प्रोसेसेस कौन से हैं कि जिनको आप ही के सिस्टम में ही एग्जीक्यूट होना है, जो कि डिपेंड नहीं है कि किसी और सिस्टम में जो प्रोसेस है उस पर. तो उससे क्या होगा कि अगर इस टाइम पे क्या हुआ कि वो शेयर कर रहे हैं आप सेम ही क्लॉक को, क्योंकि एक ही सिस्टम में वो प्रोसेसेस आपके रन कर रहे हैं. सो उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन होगी, उनकी जो एग्जीक्यूशन अब होगी वो एफिशिएंटली हो पाएगी. क्यों, क्योंकि जो उसकी टाइमिंग है, जो हमने उसको टाइम स्टैम्प दिया अकॉर्डिंग टू आवर लोकल फिजिकल क्लॉक, वो सेम है. और सेम होगी तो जिस टाइम पे हमने उनको शेड्यूल किया उसी टाइम पे उनकी एग्जीक्यूशन की जाएगी. क्लियर. सो नाउ बट फॉर द केस ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्या है कि जो आपका रिमोट, अगर आपकी कॉल जाती है रिमोट प्रोसेस पे, अगर कोई डिपेंडेंसी है, देन फॉर दैट अभी मैंने आपको बताया कि दोनों सिस्टम पे अब टाइम अलग होगा. तो उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है. तो मेनली अभी आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल क्लॉक क्या है, कि जो हर एक सिस्टम में क्लॉक है उसको हम फिजिकल क्लॉक कहते हैं. मेनली ये किस लिए यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज टू टाइम स्टैम्प एन इवेंट ऑन योर कंप्यूटर्स. And it is a kind of an electronic device that counts oscillations in a crystal at a particular frequency, and these counts get stored in your computer registers, जो कि आपको पता है that is a register is a type of storage device. Okay, so physical clock synchronization, first of all you have to describe what is a physical clock. So physical clock is it is its definition. Physical clock is an electronic device that counts oscillations in a crystal at a particular frequency. Second here, these counts are stored in registers, or you can say the counter registers, okay, in your system. Next thing, why it is used, it is used to timestamp an event on that computer. And then lastly, each computer over the network has its
own physical clock. क्लियर. नाउ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर दैट देयर मे बी क्वेश्चन लाइक दिस दैट व्हाट इज फिजिकल क्लॉक और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल क्लॉक. ओके, क्लियर है. फिजिकल क्लॉक तो क्या है, वो क्लॉक जो आपके सभी सिस्टम्स में प्रेजेंट है, वो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका मेनली यूसेज क्या होता है कि वो टाइम स्टैम्प करती है इवेंट्स को हमारे कंप्यूटर में. क्लियर है. लॉजिकल क्लॉक क्या है, जो कि हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि क्या है, अब अगर 100 नोट्स हैं, 100 नोट्स की डिफरेंट टाइमिंग होगी. नाउ अब क्या होता है कि इन द केस ऑफ योर लॉजिकल क्लॉक, ये आप कह सकते हैं लॉजिकल क्लॉक कौन से सिस्टम पे होती है, एक डिसीजन मेकिंग सिस्टम पे. वो सिस्टम जो सबसे उनके टाइमिंग पूछेगा कि व्हाट आर टाइमिंग्स इन योर सिस्टम, आफ्टर दैट वो क्या करता है, वो सिस्टम उन सभी का एक एवरेज निकाल लेता है और वो अकॉर्डिंग टू दैट एवरेज वैल्यू, एवरेज टाइम वैल्यू अपनी घड़ी में, अपने क्लॉक में और बाकी सभी नोट्स ओवर द नेटवर्क कनेक्टेड उन सभी की क्लॉक्स में वो टाइम सेट कर देता है. तो वो क्या है, लॉजिकल क्लॉक. इट मीन्स फिजिकल क्लॉक तो वो है कि जो आप कह सकते हैं टाइम जो आपका होता है मिली सिस्टम में, और जो लॉजिकल क्लॉक है वो क्या टाइम होता है, वो टाइम है जो कि हम फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एवरेज होता है ऑफ ऑल द टाइमिंग्स ऑफ ऑल नोट्स कनेक्टेड ओवर दैट नेटवर्क. क्लियर है. तो अभी अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, डिफरेंट एल्गोरिदम्स, उसमें आपको पता लग जाएगा कि लॉजिकल क्लॉक का मेनली वहाँ फंक्शन हो क्या रहा है. क्लियर है. सो टिल नाउ अंडरस्टैंड दिस फिजिकल क्लॉक विच इज़ यूज टू टाइम स्टैम्प एन इवेंट that is on your computers and it is a type of your electronic device. Now first of all here the concept मैंने भी आपको बताया, that is you have to explain the UTC to implement the clock synchronization. Your physical clock synchronization uses three concepts: UTC, Christians and Berkeley algorithm. Now first is UTC. UTC मैंने अभी आपको बताया है, UTC stands for Universal Coordinated Time. First of all it is, what is it? It is a primary time standard. It is a primary time standard which is, you can say, by which the world regulates clocks and their time. Secondly, here you can also write its full form, that is Universal कोऑर्डिनेटेड टाइम. जो आपका फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर अब टाइम यूज़ किया जाता है ना सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के लिए, उस टाइम को हम UTC कहते हैं. तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है, एक प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड है. अकॉर्डिंग टू दैट ओनली जो आपके वर्ल्ड में जितनी भी क्लॉक है वो रेगुलेट करती है अपने क्लॉक को और अपने उसके टाइम को. क्लियर है. सो व्हाट इज़ इट, ये आपको ऐसी समझ में आ गया होगा कि वो टाइम पीरियड है, वो टाइम स्टैंडर्ड है जिसकी हेल्प से सभी क्लॉक्स अपने टाइम को सेट करती हैं, रेगुलेट करते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंडली ये किस तरह से आपका यूज़ किया जाता है, दिस UTC कैसे आपका डिस्प्ले होगा सबको, इट इज़ ब्रॉडकास्टेड. इसका हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं इस टाइम को, इट इज़ ब्रॉडकास्टेड अमंग all the nodes using satellite and radio station. You can say here and short wave radio stations. Clear. And it can also be implemented using, हम इसको टेलीफोन का यूज़ करके भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बट क्यों नहीं करते, मेनली हम सैटेलाइट और रेडियो स्टेशन का यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि जो टेलीफोन का यूज़ करके इसका ब्रॉडकास्ट किया जाता है टाइम, तो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं. तो फॉर द एक्यूरेसी जो आपका इसका ब्रॉडकास्ट होता है UTC टाइमिंग का, वो सैटेलाइट के थ्रू या फिर आपकी रेडियो स्टेशन, शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन के थ्रू किया जाता है.
Okay, next here is the UTC. This UTC timing is used, it is used as a reference time by which all the computers are synchronized to a standard time. जैसे ये ब्रॉडकास्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ योर मीडियम, आइदर सैटेलाइट और रेडियो स्टेशंस की हेल्प से ब्रॉडकास्ट होता है डिफरेंट सिस्टम पे, तो वो सिस्टम क्या करती है, इसको एज अ रेफरेंस टाइम यूज़ करती है और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही वो सिंक्रोनाइज करती हैं एक दूसरे के साथ अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है? नाउ द डेवलपमेंट ऑफ योर यूटीसी ये कैसे हुई है, अब ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ यूटीसी। यूटीसी क्या है? आपका यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। एंड व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू दैट जो ऑल क्लॉक्स आपकी वर्ल्ड में है वो रेगुलेट होती हैं। सेकेंडली ये कैसे आपका पहुंचता है हर एक सिस्टम तक? इट इज़ ब्रॉडकास्टेड। ब्रॉडकास्ट मैंने आपको बताया था, ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या है कि सभी के पास जाता है वो मैसेज, तो ये ब्रॉडकास्ट होता है सभी नोड्स पे ओवर द नेटवर्क यूजिंग योर कम्युनिकेशन मीडियम दैट कैन बी सैटेलाइट एंड रेडियो स्टेशन। थर्ड थिंग, जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट होता है, जब सिस्टम आपको रिसीव करते हैं यूटीसी की टाइमिंग को, जैसे आपका यूटीसी स्टार्ट हो गया तो उसका फर्स्ट सेकंड जब ही स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम पे ही वो आपका ब्रॉडकास्ट हो जाता है सभी सिस्टम पे। तो वो सिस्टम क्या करती है, उसको एज ए रेफरेंस टाइम यूज़ करती हैं, जिसकी हेल्प से वो सिंक्रोनाइज करती है अपने क्लॉक को टू अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, अकॉर्डिंग टू यू कैन से द स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? नाउ बिफोर दिस यूटीसी की डेवलपमेंट होने से पहले क्या था? पहले यहाँ पे IAT, और जिसको हम बोलते हैं, सॉरी IAT नहीं, TAI इज़ व्हाट? इट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम। बिफोर दिस जो आपकी टाइमिंग मेजरमेंट थी, टाइमिंग यूज़ किया जाता था ऑन द डिफरेंट सिस्टम्स फॉर द नेटवर्क, तो वो आपका टाइम क्या कहलाता था? इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम। तो ये कैसे आपका यूटीसी में इसकी मॉडिफिकेशन की गई? फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट इन द अर्लियर टाइम इन ईयर 1948 atomic clocks were used. Clear? Now the measurement of time in these clocks was accurate. उस टाइम पे जो टाइम मेजरमेंट की गई थी इन एटॉमिक क्लॉक के हेल्प से वो एक्यूरेट भी थी। और वो टाइम मेजरमेंट कैसे की गई थी कि इन्होंने क्या किया था, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस नोट किए थे पर सेकेंड। ओके, सो इन दैट टाइम atomic clocks were used and the timing of this clocks, or you can say the time measurement was also accurate at that time, and it is estimated by identifying the number of transitions per second, and what was the transition value? आपकी जो ट्रांजिशन वैल्यू थी वो क्या थी? देखो, इट्स वैल्यू इज 192.631,770. आई थिंक दिस इज़ इन मिलियंस। सो बिलियंस ऑफ ट्रांजिशंस आपकी होती थी पर सेकेंड एट दैट टाइम। ओके, सो अब हुआ क्या एट दैट टाइम? उस टाइम पे क्या था, सपोज आपकी मल्टीपल नोड्स जो हैं, मल्टीपल यूज़र्स आप कह सकते हैं, मल्टीपल नोड्स कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, इस क्लॉक का यूज़ किया। दे यूज्ड, मल्टीपल यूज़र्स
used use this clock, atomic clock, and after that all of these multiple users, सपोज अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि 100 यूज़र्स हैं किसी भी सिस्टम किसी भी नेटवर्क पे, और वो 100 यूज़र्स क्या कर रहे हैं, इस एटॉमिक क्लॉक का यूज़ कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक क्लॉक जो उनकी मेज़रमेंट थी, सो वो मेज़रमेंट उन्होंने सेंड कर दी एक ब्यूरो को। वो ब्यूरो कहाँ था, वो पेरिस में था। ये क्या है, एक काइंड ऑफ हिस्ट्री है जो आपको पता होनी चाहिए टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट ऑफ यूटीसी। क्लियर है? सो दिस मल्टीपल नोड्स यूज दिस क्लॉक and submit its measurement value to BIH पे यहाँ पे लिख रही हूँ। इस ब्यूरो का नाम आपका अलग है, ये नाम होता है इसका ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ये पूरा नेम है इसका। आप जब भी लिखोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड दिस ब्यूरो ये कहाँ पे है आपका, पेरिस में। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि जो आपके डिफरेंट नोट्स इन्होंने एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया, और वो एटॉमिक क्लॉक से रिलेटेड जितनी भी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन थी, मेजरमेंट थी, वो सभी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहाँ सबमिट कर दी, एक ब्यूरो में, जो कि कहाँ था आपका, पेरिस में। क्लियर है? उसके बाद अब BIH ने क्या किया, BIH एस्टिमेट द मीन ऑफ ऑल दीज रिसीव्ड मेजरमेंट्स। अब BIH ने क्या किया, उनका ना एक मीन फाइंड आउट कर लिया। वो मीन जो उन्होंने फाइंड आउट किया, तो वो वैल्यू, वो जो यहाँ पे मीन आई है उसकी आपकी एटॉमिक क्लॉक की, वो वैल्यू उन्होंने सेट कर दी एज TAI। जो मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम, ये क्या था, एक टाइमिंग मेजरमेंट थी जो आपका बिफोर UTC यूज़ की जाती थी। क्लियर है? और ये टाइमिंग मेजरमेंट किस पे बेस थी, आपकी एटॉमिक क्लॉक पे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो आपके डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स थी, उन्होंने इस क्लॉक का यूज़ किया। उस क्लॉक के अकॉर्डिंग सबकी अपनी अपनी जो मेजरमेंट्स थी वो उन्होंने BIH को सबमिट कर दी। अब BIH ने क्या किया, उन सभी से जो भी रिसीव्ड मेजरमेंट उसको मिली है, वो सबसे उनका क्या किया, उन्होंने मीन निकाला। और वो मीन निकालने के बाद जो उनको मेजरमेंट मिली है, आप कह सकते हैं कि एवरेज मेजरमेंट, वो उन्होंने एज अ TAI कंसिडर कर ली। यानी कि अब जो उन्होंने मीन फाइंड आउट किया ना, ये मेजरमेंट आपकी हर एक नोड पे यूज़ की जाएगी फॉर टाइमिंग। Clear? So BIH estimate the mean of all these received measurements and describe a time standard which was known as, जिसको हम बोलते हैं क्या, TAI। उसको क्या बोला गया, TAI। ओके, क्लियर है? बट आफ्टर सम टाइम जो आपका ये TAI था उसमें क्या हुई, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करी। ओके, सो देयर वॉज after that there was a serious problem associated with this concept, serious problem with TAI. Clear? And what was this problem? The problem is that ये जो आपके TAI के the 86,400 seconds of TAI is now, क्या प्रॉब्लम देखी गई कि इज़ नाउ 3 मिली सेकेंड्स। यानी कि पहले क्या किया, BIH ने TAI एक सेट कर दिया, एक टाइम स्टैंडर्ड, कि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी सभी जो नोड्स पे क्लॉक हैं वो रेगुलेट होंगी। ठीक है? बट आफ्टर सम टाइम कि उसमें भी एक प्रॉब्लम देखी गई। वो क्या प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे जब सपोज आपका चेक किया गया कि जो हमने सेट किया था TAI के 86,400 सेकेंड्स, वो क्या हो गए हैं, 3 मिली सेकेंड्स बन गए हैं। क्लियर है? अब लेकिन जो वर्ल्ड में जितने सिस्टम है उनकी क्लॉक तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेगुलेट हो रही है। तो अगर इतना डिफरेंस उनमें आता है तो इट मीन्स वहाँ पे भी आपकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाएगी। एंड आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी देयर, क्योंकि अगर सपोज़ आपको कहीं रीच करना है एट 9 o'clock, क्लियर, और आपकी वॉच में अभी कितना हो 8 o'clock, और वहाँ जहाँ पे आपको पोस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी 9 o'clock हो चुके हैं, तो आफ्टर दैट अगर वहाँ पे आप जाते हो 1 घंटे बाद, तो ऑब्वियसली यू आर लेट, बट आपके अकॉर्डिंग आप लेट नहीं हो, उनके अकॉर्डिंग आप लेट हो।
सो इस तरह से वहाँ पे भी ऐसा डिफरेंस आया बहुत, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका आफ्टरनून था, जैसे आफ्टरनून अभी क्या माना जाता है कि 12 o'clock के बाद आपका क्या आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है, अप टू 12 मॉर्निंग मानी जाती है, ठीक है। सो इसी तरह से वहाँ पे भी इतना डिफरेंस आने के बाद जो आपका आफ्टरनून कंसिडर किया गया था बहुत जल्दी आने लग गया, ठीक है, बहुत जल्दी, यानी कि अर्लियर, देयर वॉज वेरी अर्लियर, आप लगा लो कि 10 o'clock और 9 o'clock उस टाइम पे फिर आफ्टरनून कंसिडर किया गया। बट ड्यू टू दिस आपका डिफरेंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई। और प्रॉब्लम किसके बीच में आई? बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑफ कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आई। अब सब कंट्रीज़ ने क्या किया, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगी उस टाइम डिफरेंस की वजह से। वो कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही उसमें हुई तो सब कंट्रीज़ ने रिफ्यूज़ कर दिया दैट वी आर नॉट एग्री टू अडॉप्ट दिस स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है? सो at that time the problem is that 86,400 seconds of TI is now 3 milliseconds, and due to this problem, due to this difference, the afternoon was very earlier. This leads to conflict between different countries, okay, and all countries refused to use TAI। क्लियर है? तो सभी कंट्रीज ने उसको यूज़ करने के लिए मना कर दिया। देन आफ्टर दैट जो BIH ने इसकी सोल्यूशन दी, आफ्टर दैट द BIH वर्कड ऑन इट, एंड द सोल्यूशन फॉर BIH इज़ व्हाट? BIH सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज इट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ लीप सेकेंड्स। It introduced the concept of leap seconds, and after that a time standard is described, और वो time standard आपका क्या होता है? UTC। क्लियर है? Now it introduced the concept of leap second, so this correction leads to a time standard which is now known as UTC। क्लियर है? अब ये लीप सेकेंड का कंसेप्ट क्या है कि जब कभी भी वैन एवर, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस लीप सेकेंड? यू नो इन 1 मिनट, आप सबको पता है इन 1 मिनट देयर इज 60 सेकेंड्स, बट इन द केस व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन, अगर अकॉर्डिंग टू BIH देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन TAI, यानी कि जो TAI का जो टाइम सेट किया गया था, एंड मीन सोलर टाइम, जो सोलर टाइम इन्होंने कंसिडर किया था, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है कितने का? डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू 800 वैल्यू अगर इसकी है m सेकेंड, देन एट दिस पॉइंट द लीप सेकेंड विल बी यूज्ड। देखो नॉर्मली तो क्या है, नॉर्मली वही आपका रहेगा कि 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड्स होते हैं, बट अगर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही यही होता है। अगर कभी भी अगर BIH ने नोट किया कि जो TAI है और मीन सोलर टाइम उनका जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू लाई कर रही है आपकी कहाँ पे? 800 m सेकेंड, मिली सेकेंड पे, देन एट दिस पॉइंट आपका लीप सेकेंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वो लीप सेकेंड की वैल्यू क्या रहेगी? इन दैट इन 1 मिनट यू विल हैव the 61, either you can have the 61 seconds or 59 seconds. This will depend according to the scenario. Okay, so this is what the leap second. So whenever you will explain this UTC, you have to explain this leap second, because जो leap second का concept है ये आपका किसको रिलेट करता है? UTC को। एंड सेकेंड थिंग, एक चीज़ और है इसके अंदर कि जो आपका UTC है, दिस UTC डिवाइड्स, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जस्ट ये लास्ट पॉइंट है अभी,
UTC divides time into 4 parts, and these 4 parts are what, you know, I think that is hours, here is the minutes, here is the seconds, and here is the milliseconds. यानी कि whenever जब कभी आप टाइम यहाँ पे इसका यूज़ करके UTC के केस में सिस्टम में अपीयर होता है, देन इट इज़ लाइक दिस 8 आवर्स, यू कैन से 15 मिनट्स, जितना भी आपका टाइम हो सकता है. नेक्स्ट आई एम टेकिंग हेयर सपोज 5 सेकेंड्स एंड हेयर इज़ द 100 मिली सेकेंड्स. तो इस तरह से आपका ये टाइम कंसिडर किया जाता है. एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम द UTC एक्सप्लेन दैट देयर आर स्मॉलर यूनिट्स इन दिस टाइम फॉर्मेट, एंड दीज स्मॉलर यूनिट्स आर नोन एज, क्या क्या होती है यहाँ पे, सेकेंड्स, और ये जो आपकी मिली सेकेंड है ये स्मॉलर यूनिट है, एंड सेकेंड इज़ द लार्जर यूनिट. लार्जर यूनिट इज़ बट, लार्जर यूनिट है आपकी आवर्स, एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, मिनट्स. एंड दिस यूनिट, दिस लार्जर यूनिट्स आर वेरिएबल. क्लियर है? सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द UTC. वन डायग्राम इज़ लेफ्ट, वो मैं आपको कल बताऊंगी. सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इजी रहेगा पढ़ने में. बुक में आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल इसमें मेंशन है. सो पॉइंट आप अगर स्टडी कर लोगे तो इजीली आप उसको समझ पाओगे. ठीक है? आई विल टेक योर अटेंडेंस.